Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video let's continue our chapter which is getting to know plants. In the last video we have completed about stem, then nodes, internodes, apical buds and all. Now today we are going to continue and we have already reached to the last point of the chapter 7 journey, which is structure of flower. Okay, so basically draw and explain the structure of the leaf and draw and explain the structure of the flower. ये दो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर के अंदर. 4 to 5 मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है. So today we are going to learning that topic. One more thing, those students who have missed the live class due to some circumstances, then this video is for you. So without wasting time, let's get started. In the last video, we have completed reticulate leaf venation and parallel leaf venation. Okay, one interesting thing is that there is relation between the roots and the leaf structure of the leaf venation. Okay, so two types of leaf venation are there, which are parallel leaf venation and reticulate leaf venation, and two types of roots are there, taproot and fibrous root. So to know that which kind of plant is having which kind of root, to understand that we should understand the relation between the root and the leaf venation. So first one is that suppose if your leaf is having net like structure like this way, this is called reticulate leaf venation. So if the plant is having reticulate leaf venation, then the root will be tap. वो root होगा taproot. Look over here, this is the example of the carrot. So in that you can easily able to understand that the leaves are having reticulate leaf venation. Okay, and जो भी reticulate leaf venation वाले plants होते हैं उसका root है वो taproot होता है. Another example I will give you. Look over here, observe the diagram of the banana leaf. You can see that all the veins are quite straight, means this leaf venation is called parallel leaf venation. So if the parallel leaf venation is there, then the root will be fibrous. You can see over here all roots seems similar. This is the root of the banana plant. Okay, so this thing is that the relation between the leaf venation and the root, if parallel leaf venation is there, then the root will be fibrous, and if the reticulate leaf venation is there, then the root will be taproot. Okay, so this is the relationship between the roots and the leaf. Now moving to the next one is the functions of the leaf. Okay, so two main functions are there. Number one is photosynthesis and number two is transpiration. What do you mean by the term photosynthesis? So the process by which living organism prepare food on their own is called photosynthesis. बेटा जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स है, वी आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट एंड एनिमल फॉर द फूड. Animals are also depending on plant or animal or on both. Okay, but ये जो plant है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है for the food. They are making food on their own. And इसीलिए हम लोगों ने उसको फर्स्ट चैप्टर में प्रोड्यूसर्स बोला था. प्रोड्यूसर्स का मतलब है जो फूड है वो खुद से बनाते हैं उसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. एंड कंज्यूमर्स मीन्स व्हाट, जो जिसके ऊपर डिपेंडेड होते हैं फॉर द फूड. So they are performing photosynthesis process and make food on their own. This is the first most important function of the leaves. Second most important function is transpiration process. जैसे हमें sweat होता है, कुछ इस तरीके से plant को भी sweat होता है. So plants are sometimes it happens that roots are absorbing excessive water. ज़रूरत से ज़्यादा वो पानी पी लेते हैं. Okay, absorb कर लेते हैं. सो उस पे से जितना पानी काम का है, ओके, द रिक्वायर्ड वाटर इज़ बीन यूज्ड बाय द प्लांट, उतना यूज़ हो जाता है. उसके बाद जो बचता है विच इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्रा वाटर, दिस वाटर द प्लांट्स आर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. ये पानी को प्लांट्स है वो लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं. पानी के फॉर्म में नहीं, पानी के गैसियस फॉर्म मतलब कि भाप के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं.
इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसीलिए जब भी आप समर सीज़न के अंदर कोई भी प्लांट के नीचे बैठो तो आपको एक ठंडक महसूस होती है, एक ब्रीज, हवा चल रही हो ऐसा फील होता है। It is thanks to the transpiration. Now who will going to perform this transpiration process? So look over here. Okay, हमने ये जो लीफ है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. So we can see that very small पोर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर जिसको मैग्नीफाइन करके दिखाया गया है. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमाटा. द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड स्टोमाटा. एंड स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? तो जैसे हमारा नोज़ है, इट इज़ गोइंग टू एक्सचेंज द गैसेस. हम ऑक्सीजन गैस इनलेट करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे नोज़ से बाहर निकालते, बॉडी से बाहर निकालते. वैसे ही प्लांट्स है वो भी ऐसे गैसेस को एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा. जब स्टोमाटा का डोर ओपन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर ले लेता है एंड ऑक्सीजन को बाहर भेजता है. ओके, साथ साथ में दूसरी प्रोसेस भी वो करता है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन, मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर by the leaves is called transpiration. Look over here in the another diagram, you can see ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है स्टोमाटा का. इसमें ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, मीन्स इसका मतलब है कि स्टोमाटा ओपन है. ओके, एंड सेकेंड डायग्राम जो राइट हैंड साइड पे है उसमें आपको दो ग्रीन कलर की थिक लाइंस दिख रही है सेंटर में. इसका मतलब है स्टोमाटा का डोर है वो बंद है. सो लाइक दिस वे ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा अपने गार्ड सेल को करता है एंड गैसेस एक्सचेंज करता है एंड ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कंटिन्यू करता है. सो दिस इज़ अबाउट द रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड द रूट. सेकेंड थिंग वी अंडरस्टूड अबाउट फंक्शन ऑफ द लीफ. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लावर? सो फ्लावर का मतलब है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे कि आपने आम खाया है, आम का जो सीड है अगर आप उसको ज़मीन में ग्रो करोगे तो आपको मैंगो ट्री मिलेगा. सो उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं. सो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस फ्लावर की मदद से होती है, क्योंकि फ्लावर रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर फ्लावर में से फ्रूट मिलता है, फ्रूट में से सीड मिलता है, और ये सीड है वो आपको फिर दूसरा सेम टू सेम नया प्लांट है वो देता है. तो इसलिए ऑल एंड ऑल वी कैन से दैट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. नाउ ये जो फ्लावर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल दैट दे आर हैविंग वेरी ब्यूटिफुल वेरियस fragrances, then having beautiful colors, petal shapes and all, so that the insects and butterfly gets attracted and help to continue the reproduction process of the plant. उनकी ब्यूटीफुल कलर है, फ्रेग्रेंस है, शेप्स है, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट है वो उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर होता है जूस जिसका नाम है नेक्टर. ओके, सो ये उनका खाना होता है, इसलिए सो खाने के बहाने अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो अपनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन लोगों की मदद ले सके. कैसे? दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द 7th स्टैंडर्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है. सो इन दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. उसके 2 मार्क्स होंगे और 2 मार्क्स उसके एक्सप्लेनेशन के होते हैं. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सो फर्स्ट पॉइंट उसमें है कि फ्लावर के मेनली 2 पार्ट्स है, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट. लुक एट द डायग्राम केयरफुली. So in this diagram you can see that 2 outer parts are there which are sepals and petals. Sepals you can see inside the diagram, the leaf like structure is there which is present over here, which is called sepals. ये जो sepals है वो जब फ्लावर ब्लूम नहीं होता है, बड स्टेज में होता है, तब ये sepals उसके अराउंड वाइंडेड होती है.
ओके, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये जो फ्लावर है उसके इनर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सेपल का है. सो सेपल इज़ द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर विच इज़ located at the base of the flower and its function is to protect the flower at the bud stage. ठीक है? Okay, next one is these beautiful coloring petals. So these petals, the coloring leaf like structure which has beautiful fragrance is called petals. Okay, और petals का काम है to attract the insects by releasing beautiful fragrances. Got it? So these two, sepals and petals, are the outer part of the flower. Now let's understand inner part of the flower. So on the flower you usually see such kind of structure, small yellowish structure plus green structure. So that are called as inner part of the flower. First one is male reproductive part named as stamen, and second one is female reproductive part named as pistil. So look carefully the diagram. I am going to show you this one. So ये है हिबिस्कस फ्लावर, जासूद जिसे बोलते हैं. सो हिबिस्कस फ्लावर के अंदर आपको ये जो येलो येलो दाने जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर नेम एज स्टेमन. यू कैन सी ओवर हियर दैट स्टेमन इज हैविंग, लुक, पतली पतली, दूसरा कलर दिखाती हूँ सो दैट यू कैन ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड. सो ये जो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है फ्लावर के अंदर ट्यूब जैसा, ये दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट. इसको फिलामेंट बोला जाता है. ये जो ऊपर बर्ड जैसा स्ट्रक्चर है ये इनको बोला जाता है एंथर. ये आपको याद रखना है, ठीक है. एंड आप देख रहे हो छोटा छोटा दाने जैसा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, इसको बोला जाता है पोलेन ग्रेन्स. So this is about stamen. Stamen means the male reproductive part of the plant, जिसमें 3 चीज़ें हैं, filament, anther and pollen grains. Now let's understand about female reproductive part जिसका नाम है pistil. So look at the diagram over here. You can see total 6 things are there. Number 1, number 2, number 3, 4, 5 and 6. ये जो 6 है they are known as stamen. एंड ये जो सेंटर में येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड पिस्टिल. पिस्टिल को जब आप ब्रीफ में देखेंगे सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट्स पार्ट इन डिटेल. लुक ओवर हियर. सो द अपर पोर्शन इज कंसीडर एज स्टिग्मा. ओके, मैं दूसरा डायग्राम है उसमें ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं हम लोग स्टिग्मा. सी, ये जो येलोइश पोर्शन है ऊपर का, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. ये जो नीचे का ट्यूबुलर पोर्शन है इसे बोलते हैं स्टाइल. दिस 2 थिंग्स यू कैन सी ऑन द फ्लावर. फ्लावर के ऊपर के पोर्शन में से ही स्टिग्मा एंड स्टाइल आपको आसानी से दिख जाएगा. अब हम समझते हैं अबाउट ओवरी.